In the last session, we have seen this part antiviral drugs, how virus is different than bacteria, how antibacterial therapy is more specific than antiviral therapy, why a lot of antiviral drugs are not coming nowadays. रिसर्च में एंटीवायरल ड्रग का रिसर्च करना उतना इजी नहीं है क्यों बिकॉज बैक्टीरियल सेल एंड वायरल सेल डिफरेंट है बैक्टीरियल सेल इज इट्स बैक्टीरियल सेल will have its own cell wall cell own cellular enzymes own metabolic factory. So bacteria can multiply independently, but virus is an intracellular parasite and totally depends on the host cellular machinery for the synthesis. Okay, so that's why you cannot kill the cell, you cannot kill the specifically, you cannot target the viral cell. Okay, तो उसमें वायरस आपके ही सेल में यू मल्टीप्लाई होता है और आप ही के सेल का एंजाइम्स आप ही के सेल का ठीक है मेटाबॉलिक फैक्ट्री यूज करते हैं दैट्स व्हाई you can viral antiviral therapy is not more specific as compared to antiviral therapy is not as specific as antibacterial therapy. So उसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग को जितने एडवर्स इफेक्ट है वो कम है. ओके, मतलब कम है मतलब वो भी ज्यादा है लेकिन एज कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग्स सो दे हैव सिलेक्टिविटी, दे हैव स्पेसिफिसिटी, दे हैव लेस एडवर्स इफेक्ट एज कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग. We have seen this part. Okay, we have seen the different targets for drug, how drug can affect the various steps of virus. Okay, virus के steps होते हैं जैसे attachment, penetration, uncoating, then nucleic acid synthesis, protein synthesis, okay, assembly and release. तो हर एक step के ऊपर कौन से drug होते हैं act होते हैं वो we have seen the classification 2-3 times. Okay, by different book जैसे KDT पर एक classification भी देखा है, दूसरी बुक्स का क्लासिफिकेशन भी देखा है. ठीक है, ये सब हो चुका है. वी हैव सीन दिस आल्सो. सो लास्ट स्लाइड वाज दिस, yesterday's last slide was this. Okay, so we'll start from the last slide. So examples of drugs affecting the specific step of viral replication. तो वायरल जो रेप्लिकेशन होता है, वायरल डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर वायरल जो रेप्लिकेट या फिर वायरल पार्टिकल जो मल्टीप्लाई होता है आपके सेल में इंटरसेलुलर. So the steps are there like attachment, uncoating, okay, then uncoating, then release of DNA, RNA, then multiplication, that is replication, transcription, okay, then translation, then assembling, then release. So these are the steps. So the already drug, there are few drugs that can affect the different steps. Okay, so uncoating will be prevented by this drug amantadine and rimantadine. Amantadine will prevent the uncoating. Transcription step is prevented by interferons. So what are the interferons? Interferons are nothing but the antibodies produced against the viral infection. जैसे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपको तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई एन ऑल दैट. सो लाइकवाइज वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया so against the viral antigen your body will produce particular glycoproteins and that is nothing but the interferons. So they are of alpha, they उसके भी types थे alpha interferon, beta interferon. So these interferons will affect the various steps, not only transcription, they will affect the different steps. Then translation of virus particle or translation of viral proteins, that is prevented by fomiviracin and interferon again. Okay, then DNA and RNA replication process of virus, that is inhibited by these drugs: acyclovir, cidofovir, famciclovir, ganciclovir, foscarnet, hydroxyuridine, then ribavirin and sorivirin. Okay, sorivirin. These are the drugs that affect the replication. Then interferon again, zanamivir, oseltamivir, prevent the budding, that is prevent the assembly, prevent the release of particles, viral particles from the cell. Okay, they are known, these two last two, zanamivir and oseltamivir, they are known as a neuraminidase inhibitor. We have seen this already. Okay, today's session will start from this slide. So this part was not taken by me, so that's why I have to revise it. So there are different kind of viruses. ये viruses बहुत सारे different kind of viruses होते हैं और वो आपको कौन से डिसीज करते हैं. ओके, सो वायरस एंड डिसीज कॉज्ड बाय देम, virus and disease caused by them. So as I told you in the last session also, so there are two type of virus, DNA virus and RNA virus. तो DNA virus होता है, RNA virus. DNA virus कौन से है? जैसे pox virus. Okay, pox virus will cause you smallpox disease. Smallpox disease caused by pox virus. Then herpes simplex virus. Herpes virus जो होते हैं इसके types होते हैं, like herpes virus की वजह से herpes virus will cause you chicken pox. Chicken pox
का पैंडेमिक महाराष्ट्र में भी आया था आई थिंक लास्ट ईयर, कोरोना से पहले आया था 2019 आई थिंक 2019-20 में आया था चिकन पॉक्स, तो सबको चिकन पॉक्स हो गए कान्या मार्ट में। पॉक्स वायरस विल कॉज स्मॉल पॉक्स डिसीज, herpes virus, chicken pox will caused by herpes virus, then shingles herpes। नहीं पॉक्स मतलब वही टाइप ऑफ वेरिसेला जोस्टर, ये थोड़ा सा ये एक्चुअली ये बुक में से ही दिया है, ये चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस करता है एक्चुअली, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, सो काइंड ऑफ वेरिसेला जोस्टर, इट इज अ काइंड ऑफ herpes वायरस, herpes सिम्प्लेक्स होता है, वेरिसेला जोस्टर भी एक herpes वायरस ही, सो causative agent for chicken pox that is the varicella zoster, okay, then herpes, okay, then herpes virus, category of this herpes virus causes this disease, chicken pox, syngeal herpes, syngeal herpes means it is a kind known as a मराठी मध्ये याला नागिन म्हणतात, so it is a नागिन जे झालं ना ते that is a syngeal herpes, both are caused by that जो varicella zoster, glandular fever is also caused by herpes virus, then adenovirus will cause like this disease like sore throat, then conjunctivitis, throat infection करेगा adenovirus, conjunctivitis भी करेगा, then papilloma virus will cause genital warts, तो genital organ के ऊपर warts, parvovirus will cause canine distemper, मतलब ये parvovirus क्या करेगा, canine distemper मतलब क्या, जानवर पागल हो जाएगी, particularly जो rabies virus है, so it is a type of parvovirus, तो रेबीज वायरस क्या है, टाइप ऑफ पार्वो वायरस, अभी वेरिसेला जोस्टर क्या है, टाइप ऑफ herpes वायरस, पार्वो वायरस विल कॉज कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन मतलब क्या, काटने वाले जानवर जो होते हैं कैनाइन, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर दूसरे जो जानवर हो गए, वो क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, बिकॉज रेबीज हो गया उसको कुत्ते को, तो रेबीज वायरस क्या करेगा, उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट करेगा, सो कैनाइन डिस्टेम्पर is caused by parvovirus, canine distemper में एक rabies वायरस भी आता है, so it is a kind of parvovirus, then these are the DNA virus, they can cause these, ठीक है, DNA वायरस में आता है आपका DNA वायरस, एग्जांपल पॉक्स वायरस, herpes वायरस, adenovirus, papilloma virus and parvovirus, so pox virus will cause you smallpox disease, smallpox, then herpes virus, so particularly varicella zoster infection, varicella zoster will cause you these infection, chicken pox is caused by varicella zoster, okay, and that is again a complication of this chicken pox or after chicken pox, जिनको chicken pox हो गया after the chicken pox, so if it is not totally cured, okay, in immunocompromised patient, so chicken pox will result in another infection known as a syngeal herpes, syngeal herpes, okay, that is nothing but the मराठीमध्ये त्याला नागिन म्हणतात, so syngeal herpes, then glandular fever, then sore throat and conjunctivitis is caused by adenovirus, warts, particularly genital warts are caused by papilloma virus, then canine distemper is caused by parvovirus genus, okay, so for example in case of dogs, so rabies virus is there, so that rabies virus can cause dog distemper, जिसको रेबीज हो चुका है वायरस, जिसमें रेबीज वायरस है, तो वो क्या करता है, काटने को दौड़ता है कुत्ता, तो मतलब होता है ना कि कुत्ता पागल हो गया, तो वो कुत्ता जिसको देखता है उसको काटता है, क्योंकि उसमें वायरस रहता है, rabies virus, and because of that humans also suffer from rabies virus, so there are certain RNA virus, RNA virus means what, these virus will have RNA as a nucleic acid, those virus which have DNA as a nucleic acid, so they are known as a DNA virus, those virus which are having RNA as a nucleic acid known as a RNA virus, so okay, ortho orthomyxovirus will cause influenza, ऑर्थोमिक्सोवायरस से बड़ा उसका कैटेगरी होता है, उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी आता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी सी डी उसके टाइप होते हैं बहुत सारे, परम वायरस विल कॉज मीजल्स, मम्स, रेबीज, दिस रैप्डो वायरस विल कॉज कोल्ड्स, मेनिंजाइटिस, पीकर वायरस इट इज अ जीनस, ये जीनस है, उसमें एग्जांपल अलग अलग होता है कि रैबिस वायरस अलग आएगा, ये वाला, सो पीकर विल कॉज पोलियोमाइलिटिस, पीकर वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस is a type of picker virus, okay, poliomyelitis virus जो होता है, poliomyelitis virus, उसकी वजह से पोलियो होता है, तो poliomyelitis virus is nothing but the polio virus, but it is a type of picker virus, retrovirus में आता है आपका एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, so it is a kind of retrovirus क्या है, जीनस है, उसमें एड्स का वायरस भी आता है, then some oncogenic virus, then adrena virus will cause meningitis, Lassa fever, adrena virus genus,
there are some virus in the adrena that can cause meningitis lesser pure. HEPA-DNA virus will cause hepatitis, that is hepatitis B virus is different, hepatitis C virus is different. Rigo virus will cause diarrhea. Filovirus, in that case Ebola virus, Marburg virus, Punia virus will cause you encephalitis again, hemorrhagic fever. So these are some diseases, and these are some diseases and genus of virus, diseases caused by few genus of virus. उसमें एग्जांपल भी अलग अलग है, जैसे पॉक्स वायरस में भी बहुत सारे वायरस, हर्पीज वायरस में भी वेरिसेला जोस्टर आता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स आता है, बहुत सारे आते हैं। एडेनो वायरस में भी टाइप्स होता है उनका, दे कैन कॉज सोर थ्रोट कंजक्टिवाइटिस, पैपिलोमा वायरस वार्ड्स करेगा, पारो वायरस कैनाइन को डिस्टेम्पर करेगा, उसमें रेबीज वायरस भी आता है, ठीक है। रेबीज इज आरएनए वायरस पर्टिकुलरली उसमें, तो कैनाइन डिस्टेम्पर करने वाला एक रेबीज आरएनए वायरस भी होता है। बाकी दूसरा भेज, जैसे गाय गाय भैंस पागल होती है, जैसे बैल भी पागल हो जाता है कभी। लास्ट पार्ट ऑफ योर वायरल एंटीवायरल ड्रग, HIV and AIDS, ठीक है, HIV and AIDS, we have seen different antiviral drug used in the treatment of herpes simplex virus, then other infections also. So majorly three categories are there. So उसमें जैसे वहाँ पे दिखाया है यहाँ पे, so in very first line, so like we have seen the drug used in the herpes virus, okay, treatment of influenza virus, drug used in the influenza virus, and drug used in the hepatitis virus, okay. So we have seen this part in the last lecture. Now next part क्या है, that is the drug treatment of HIV HIV and AIDS. So what is HIV? HIV is nothing but the human immunodeficiency virus. H means human immunodeficiency virus. So as the name indicate, it is a human immunodeficiency virus. So immunodeficiency will be there, so immunity will be lost. So this virus attacks on a immune cell of bodies, like your lymphocyte, T lymphocytes, macrophages and all that. So particularly CD4 cells, helper type of cells, helper T cells, that is CD4 cell. So HIV वायरस क्या करता है कि वो हेल्पर टी सेल जो है उसको ही अफेक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। सो उसमें वो जो पर्सन है उसमें इम्यूनिटी रहता नहीं, ओके। सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस which is a commonly transmitted to sexual intercourse or by contaminated syringe or needles or by contaminated blood transfusion, and also through blood products, and can be transmitted to fetus from the mother during the pregnancy, or again during the child birth and breastfeeding also it is also transmitted to. So but this virus is not transmitted by casual handshake, ठीक है। तो ये वायरस कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इट इज कॉमन कॉज फॉर एड्स, that is nothing but the acquired immunodeficiency syndrome. HIV is the virus, name of virus, it is the disease caused by HIV. AIDS क्या है, disease है, HIV क्या है, virus है, okay. So virus, it is commonly transmitted to a infected person, infected sexual partner during the sexual intercourse. Again, if you use infected needles and syringe, जैसे ड्रग एडिक्ट में होता है, ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, उनको ईगरली ड्रग लेना होता है, तो वो बार बार वही सिरिंज यूज करते हैं। वन ऑफ द ड्रग एडिक्ट वाज वन ऑफ द कॉज फॉर ट्रांसमिटिंग दिस डिसीज एक्चुअली। अगर एक को है तो वो दूसरा वही सिरिंज अगर वो यूज किया तो चांसेस बनता है उसको एड्स होने का, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट टाइम ओनली सिंगल यूज सिरिंज आर यूज एंड थ्रो सिरिंज। तो अभी डॉक्टर ने अगर आपको एक इंजेक्शन लगाया तो वो सिरिंज इमीडिएटली वो फेंक देता है, वो निडल भी फेंक देता है, तो सब कुछ नया। सो यूज एंड थ्रू ऐसा ही कंडीशन आ चुका है, बिकॉज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एड्स, ओके। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस is a causative agent for AIDS, okay, acquired immunodeficiency syndrome. Now it is commonly transmitted through infected sexual partner due to sexual intercourse, use of needles, okay, use of syringe and needles, infected syringe and needles or contaminated syringe and needles, by blood transfusion, if you transfuse blood which is having HIV virus, or through blood products, it is also transmitted from infected mother to fetus. अगर माता को अगर एड्स का वायरस का इन्फेक्शन है, अगर उसमें अगर कंसेप्शन हो गया या फिर उसमें प्रेगनेंसी हुआ है तो वो बच्चे को भी वायरस ट्रांसमिट होता है। अगेन दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो, बट इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कैजुअल हैंडशेक। अगर आपने कोई एड्स का पेशेंट देख लिया
भाग मत जाना उसको, अगर उसको गले भी मिल गए आप, इफ यू हग दैट पेशेंट, इफ यू हैंडशेक विद दैट पेशेंट, दिस वायरस इज नॉट गोइंग टू बी गेट एंट्री इनटू योर बॉडी। तो अगर हैंडशेक किया आपने, उसको हग भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑब्वियसली इफ यू ट्राई टू किस दैट पर्सन, so during the kissing, if there is a blood contact, then obviously you are prone to get contact। ठीक है, जिस जहाँ पे भी ब्लड होगा, जहाँ पे अगर उसका ब्लड है, अगर किस करते समय ब्लड निकला, सो ऑब्वियसली दैट ब्लड is going to affect you, that blood में, उस blood में वायरस हो सकता है। ओके, so normal handshaking and hugging will not get infection। Okay, so it is not transmitted by casual handshake and or by aerial transmission। हवा में ये जिंदा नहीं रहता, जैसे कोरोना वायरस जो होता है कि हवा में कुछ देर तक जिंदा था। So this virus is not transmitted by aerial route। Okay, so sequence of steps of infection, infection कैसे होगा? So what are the different sequence of steps of infection? First, upon the entry in the body, वायरस का एंट्री अगर बॉडी में हो गया आपकी, upon the entry in the body, viral, this AIDS virus or immunodeficiency virus has a one outer protein known as a viral outer glycoprotein GP120। So upon the entry of virus in the body, so viral protein known as a GP120 protein or glycoprotein 120, they binds to CD4 they, they binds to CD4 receptor. Upon entry into body, this HIV virus has a glycoprotein on its coat known as a GP120। Now it binds to the CD4 receptor on the surface of T lymphocytes। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ ब्रेन। तो आपकी जो डिफेंस सिस्टम होता है, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ ब्रेन, सो वो सब सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। तो वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो CD4 रिसेप्टर के ऊपर एज अ रिसेप्टर बोल के बाइंड हो जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन विल बाइंड टू CD4 रिसेप्टर of different immune cells like T lymphocyte, monocytes, monocytes, macrophages, dendritic cells of brain। Now binding is followed by binding is followed by binding to the chemokine receptor of the cell surface like CCR5 and CXR4। तो इसके बाद में एक आपके सेल के ऊपर एक केमोकाइन रिसेप्टर भी होता है लाइक CCR5 एंड CXCR4। तो जैसे ही वायरल का ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रिसेप्टर को बाइंड करता है आपके ब्लड सेल के, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, उसके बाद में और भी ये वायरस बाइंड करता है आपके डिफरेंट बाकी सेल जो होते हैं उसके सेल में, सेल की सरफेस को, जैसे केमोकाइन रिसेप्टर के थ्रू, जैसे CCR4, CCR5 and CXCR4। These are the kind of chemokine receptor। जैसे CCR5 मतलब chemokine receptor 5, CXCR5 तो उसका भी एक लॉन्ग फॉर्म है, अभी मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम होना भी जरूरी नहीं। So just remember chemokine receptor are also present on the cell surface, that is a CCR5, CXCR4। सो ये अटैचमेंट होगा, वायरस बॉडी में आएगा ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, CD4 रिसेप्टर के थ्रू, आपके डिफेंस सिस्टम जो है टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, उसके ऊपर अटैच होगा। देन उसके बाद में और ज्यादा अटैचमेंट के लिए रिस्पांसिबल कौन है? केमोकाइन रिसेप्टर like CCR5, CXCR5। After attachment to above receptor, virus fuses with the cell। ठीक है, जैसे अटैचमेंट होगा वो फ्यूज हो जाएगा आपके सेल में and through the glycoprotein that is GP41 enters into the cell after fusing, enters into the cell and releases the genetic material। सेल के अंदर जाएगा, जो भी सेल है उसके अंदर जाएगा, उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का जो भी है, तो HIV वायरस का तो RNA होता है, तो RNA वो रिलीज कर दे। सो आफ्टर द अटैचमेंट it will get fused with the cell and it will go inside the cell and it will release the genetic material that is RNA, ribonucleic acid। RNA रिलीज कर देगा। नाउ दिस RNA आफ्टर द रिलीज ऑफ RNA जैसे ही सेल के अंदर जाता है उसकी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। सो आफ्टर एंट्री इनटू सेल द systems activated। system from RNA virus that is AIDS virus is activated। HIV वायरस में एक्टिवेट हो जाएगा। कैसा? मतलब जितने भी एंजाइम्स है उसके, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, सो दीज काइंड ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द
HIV virus, integrase enzyme is there, reverse transcriptase enzyme is there, protease enzyme is there. Okay, so these three enzymes, they are activated upon entry of this virus inside the cell. Reverse transcriptase enzyme of HIV virus, protease enzyme of HIV virus, and integrase enzyme of HIV virus. Now, what is the role of these enzymes? I have already explained this in the last slide. So, reverse transcriptase will convert RNA into DNA. Then protease enzyme are responsible for the activation of different proteins and enzymes. Then integrase enzyme is required for the integration of viral DNA into host DNA. तो आप बोलेंगे सर ये तो RNA वायरस है, इसमें DNA कहाँ से आ गया? There is a role of this reverse transcriptase. So upon entry of virus into the cell, it will release the genetic material, that is RNA. Okay. Now reverse transcriptase will be activated. RNA will be converted into DNA. So reverse transcriptase is nothing but the RNA dependent DNA polymerase. क्या बोलते हैं reverse transcriptase को? RNA dependent DNA polymerase. And other enzymes are also activated. Other enzymes कौन से? जैसे मैंने बोला कि protease enzyme. Then उसके बाद में integrase enzyme. These are really activated. तो जैसे ही entry होता है वायरस का सेल के अंदर, तो उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है कि नहीं? सो एचआईवी वायरस, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इट विल अफेक्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम. उसमें दो टाइप होता है, एचआईवी 1, एचआईवी 2. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एचआईवी वायरस व्हिच आर नोन एज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. दे कैन कॉज यू एड्स. ओके, सो नाउ दिस इट इज द वायरस इज ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स. एक ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर. अगर किसी को ऑलरेडी एड्स है, उसके साथ में आपने फिजिकल रिलेशन बनाए, तो उसमें चांस बनता है कि आपके बॉडी में भी एंटर करेगा. देन कंटेमिनेटेड नीडल्स. अगर किसी एड्स पेशेंट ने अगर ड्रग्स यूज किया और उसका दूसरे ड्रग एडिक्ट ने यूज किया, तो उसमें भी चांसेस बनता है. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इफ यू गॉट अ ब्लड transfusion of infected blood with HIV, then you will get HIV through blood products. If mother is infected with HIV, okay, so that virus is transmitted to her child also in the fetus, okay, in the womb, okay, during breastfeeding also, but not transmitted by casual contact or casual handshake or hugging. Okay, it doesn't, or it is not transmitted by aerial route. Okay, now sequence कैसे होता है, इन्फेक्शन होता कैसे? सो दिस इन्फेक्शन और आफ्टर गेटिंग वायरस अपॉन एंट्री इनटू बॉडी, वायरस का अगर एंट्री हो गया आपकी बॉडी में, तो वायरल के आउटसाइड जो प्रोटीन होते हैं उसको बोलते हैं GP120 प्रोटीन. दे विल बाइंड टू CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट immune cells like T lymphocyte, macrophages, okay, macrophages, T lymphocytes, monocytes, dendritic cells of brain. Now this is followed by, उसके बाद में क्या होता है कि सेल के सर्फेस के ऊपर उसके केमोकाइन रिसेप्टर होते हैं. सेल के सर्फेस, अपने सेल के सर्फेस, मतलब होस्ट सेल के ऊपर केमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, आफ्टर बाइंडिंग टू CD4 receptor of different immune cells of body, this virus also binds to chemokine receptors of cell surface like CCR5 and CXR4. okay, आफ्टर दैट ये अटैचमेंट हो गया वायरस का सेल के ऊपर. आफ्टर दैट देयर विल बी पेनिट्रेशन. ओके, सो अटैचमेंट ऑफ अबव रिसेप्टर वायरस फ्यूजेस विद द सेल वायरल ग्लाइकोप्रोटीन GP41. तो GP21 किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? अटैचमेंट के लिए. क्वेश्चन आ सकता है कि अटैचमेंट का कौन सा प्रोटीन होता है? Which glycoprotein of virus is responsible for the attachment? GP120. And this glycoprotein GP41 is responsible for the penetration, okay, or fusion. So using this GP41, it will fuse to your cell. Okay, then after fusing it will go inside the cell and release the genetic material. वो release करेगा RNA. So that RNA जैसे release होता है, वो सब वायरस का जो सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज. ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? जो रिलीज्ड आरएनए है वायरस का आरएनए, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में मतलब उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेगा. सो आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जो डीएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल, दैट विल बी रेप्लिकेटेड, उसका कॉपी बनेगा. आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन होने के बाद में डीएनए का आरएनए बनता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, और आरएनए के बाद में उसका प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. दैट इज अ नॉर्मल सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ. डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज अ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ. बट एड्स वायरस जो है, एचआईवी वायरस, ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस एंड इज हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है कि आरएनए है. तो आरएनए है तो उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा?
ठीक है, आरएनए का तो रेप्लिकेशन होता नहीं, लेकिन ये रिट्रोवायरस होने के कारण इसमें एक एंजाइम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो रिवर्स मतलब क्या, उल्टा। ट्रांसक्रिप्टेज मतलब क्या, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने वाला है उसको उल्टा करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा क्या है, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वायरस का, तो उसको, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सो जो वायरस आरएनए वायरस है उसमें सिर्फ आरएनए ही होता है, लेकिन वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, उसको आरएनए को डीएनए बनाता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड। नाउ दैट डीएनए इज इंटीग्रेटेड विथ आवर डीएनए। जो आपके सेल है, जो आपके सेल के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सेल में भी डीएनए रहता है ना, तो वो डीएनए और ये जो वायरस का आरएनए से डीएनए बना है, वो दोनों डीएनए फ्यूज हो जाते हैं। ओके, दैट इज डन बाय वन एंजाइम नोन एज इंटीग्रेज। ओके, इंटीग्रेज। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर रेप्लिकेशन होगा आपके होस्ट सेल की एंजाइम को लेके, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वायरस का अलग अलग पार्ट का सिंथेसिस होगा, और वो वायरस फिर से असेंबल होगा और वो वहां से रिलीज हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। नाउ अटैचमेंट ऑफ above receptor fuses with the cell via viral glycoprotein GP41 and releases the genetic material, that is RNA. Now RNA will be converted to DNA via reverse transcriptase. Okay, and other enzymes also activated like integrase and protease. ठीक है, now third step क्या है, from the single stranded RNA using reverse transcriptase. Okay, complementary DNA will be synthesized by virus. Okay, that is by reverse transcriptase. So single stranded RNA जो होता है उसके उसका accordingly उसके complementary DNA बनता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनता है by the using enzyme reverse transcriptase. वो ऑलरेडी उसका ही होता है, अपना नहीं होता है. Now these steps, okay, by virus. Okay, now mutation occur in this stage. यहाँ पे म्यूटेशन आ सकता है, म्यूटेट हो सकता है वायरस, कि थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर सकता है, या फिर इट कैन चेंज द इट कैन चेंज इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसमें भी चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस। कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये जो ड्रग्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है वायरस को। क्यों? क्योंकि वायरस क्या करता है, आपने जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेता है, म्यूटेशन की। तो इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द resistance of HIV virus. Now newly synthesized DNA molecule, that is double stranded DNA. Now it get integrated with the host cell chromosome. आपका जो सेल का डीएनए होता है उसके साथ में ये फ्यूज होता है, उसके साथ में ये मिक्स होता है, उसके साथ में ये इंटीग्रेट होता है बाय यूजिंग वन एंजाइम नोन एज इंटीग्रेज। ये एंजाइम भी कहाँ का है, ये एंजाइम भी आपके वायरस में ही होता है। सो वायरस में थ्री एंजाइम्स आते हैं, देयर आर थ्री एंजाइम्स इन द वायरस। फर्स्ट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, second is the integrase, third one is the protease. Okay, so protease, integrase and reverse transcriptase, these are the viral enzyme. ये वायरल एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए का डीएनए बनाएगा। ठीक है, जो जिसका डीएनए, किसका आरएनए का डीएनए, सो वायरस का जो आरएनए है उसका डीएनए बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। वो डीएनए भी किसका होगा, वायरस का ही होगा। ओके, ना आपके सेल में वायरस का डीएनए है, आपका डीएनए है। ठीक है, आपका सेल का खुद का डीएनए रहता है ना, so that viral DNA fuse with the host DNA, that is known as a, okay, that is known as a integration. Okay, integration of viral DNA to the host DNA by, or mixing of viral DNA to into host DNA, that is done by viral enzyme integrase. Okay, now this transcriptase, reverse transcriptase, integrase, protease, all these three are nothing but the targets for antiretroviral drug. ठीक है, ये क्या है, टारगेट्स है कि कोई ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगे, कोई ड्रग इंटीग्रेज को इनहिबिट करेंगे, कोई ड्रग आपके प्रोटीएज को इनहिबिट करेंगे, कोई ड्रग क्या करेंगे जो CCR5 रिसेप्टर है तो उसको इनहिबिट करेंगे। तो रिलेटिवली न्यूअर ड्रग है, जो आजकल नए ड्रग आ रहे हैं वो CCR5 रिसेप्टर है उसको अटैच ही नहीं होने देंगे। ठीक है, केमोकाइन रिसेप्टर इनहिबिटर्स लाइक मिरावायरम, तो ये बाद में आपको प्लस पेज में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंटीजन और साइटोकाइनिन विल एक्टिवेट द सेल एंड HIV replication start using host DNA polymerase and this transformed viral DNA into mRNA. अभी यहाँ पे आपका वायरस का आरएनए से क्या बना, डीएनए बना। ये तीनों स्टेप में अभी ये जो वायरल डीएनए जो है, ओके, तो वायरल डीएनए क्या करेगा, जैसे वायरस का एंटी होता है एंटीजन भी रिलीज होता है, तो एंटीजन और साइटोकाइनिन विल एक्टिवेट द सेल एंड HIV।
जो सेल है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। नाउ HIV का क्या है आपके पास अभी RNA से DNA बना है। नाउ DNA विल स्टार्ट रेप्लिकेशन बाय यूजिंग होस्ट DNA पॉलीमरेज। जो आपका सेल का DNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसको लेके ये क्या करेगा, खुद का DNA रेप्लिकेट करेगा। DNA क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री RNA। तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने RNA बनाया, RNA से DNA बनाया, तो वो DNA किसका है, वायरस का है। सो वायरल DNA विल स्टार्ट रेप्लिकेशन using host DNA polymerase and convert DNA into mRNA। तो पहले mRNA बनेगा DNA से, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सो एंटीजन और साइटोकाइनिन will activate the cell and okay will activate the cell. Now HIV replication start, host DNA polymerase enzyme will be utilized for the converting of viral DNA into viral mRNA. Now viral mRNA will be translated, that is a protein synthesis. So that's how these are the steps of infection. Infection कैसे होता है, now these proteins after the okay जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो इमेज है उसमें ज्यादा एक्सप्लेन। तो जैसे ही यहाँ पे थर्ड स्टेप तक क्या हुआ था, थर्ड स्टेप तक यहाँ पे जो वायरस का RNA है तो उसका DNA बन चुका है, ठीक है, उसका DNA बन चुका है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। नाउ ये DNA जो है वायरस का वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा बाय यूजिंग होस्ट एंजाइम DNA पॉलीमरेज। जो आपका सेल का एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज, उसको लेके जो वायरल का DNA है उसका रेप्लिकेशन होगा, कॉपीज बनेगी, एंड उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन होगा फ्रॉम वायरल DNA देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ mRNA, वायरल mRNA, that is a transcription, and from mRNA virus will synthesize their protein, the viral protein synthesis होगा known as a translation. Now these proteins after translation, viral proteins they are assembled in the cytosol. ये क्या होता है कि ये वायरस का जो कैप्सिड पार्ट होता है वो अलग सिंथेसाइज होता है, वायरस का टेल पार्ट जो है वो अलग सिंथेसाइज होता है, वायरस का एंजाइम्स अलग सिंथेसाइज होता है, वायरस का जो RNA तो ऑलरेडी है उसमें, वो एक RNA। सो ये सब अलग अलग है, अभी क्या करना है उसको ज्वाइन करना है। तो दीज प्रोटीन्स असेंबल्ड इन द साइटोसोल पार्ट ऑफ होस्ट सेल, जो आपका सेल का साइटोसोल है उसमें ये असेंबलिंग होगा, ठीक है। होता है ना कि जैसे पल्सर गाड़ी है तो पल्सर के जो पार्ट होते हैं, पल्सर बनता है यहाँ पे औरंगाबाद बजाज नगर में, तो यहाँ पे जो बजाज कंपनी है वहाँ पे, लेकिन उसका जो पार्ट्स है वो पार्ट्स बाहर से आता है या फिर दूसरी कोई कंपनी बनाती है। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में कोई कंपनी है, हरियाणा में कोई कंपनी है, या फिर हैदराबाद में कोई कंपनी है, या फिर दूसरे यहाँ पे कोई लोकल की कोई कंपनी है, तो वो पार्ट्स बनाते हैं, वो पार्ट्स बना के फिर वो पे यहाँ पे लाया जाता है, कहाँ पे, बजाज नगर में। और बजाज नगर में क्या होता है कि फाइनल वो गाड़ी का असेंबल होता है। तो वैसे ही बना है आपका जो न्यूक्लियस में क्या बना है, न्यूक्लियस में जो RNA है वायरस का उसका DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, वो न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में वो DNA आपके होस्ट सेल के DNA के साथ में इंटीग्रेट होता है, उसके बाद में वहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, ओके, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ DNA टू RNA, mRNA बनता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन होता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन अलग अलग बनेगा, जैसे कैप्सिड अलग बनता है, आपका टेल अलग बनता है वायरस का, एंड बाकी एंजाइम्स अलग बनते हैं। नाउ क्या है, ये अलग अलग एंजाइम्स है वो फिर से साइटोसोल में लेके आते हैं, ये जो प्रोटीन्स बनाए हैं, एंजाइम्स बनाए। सो all these all these parts are assembled in the cytosol of host cell. Now viral nucleocapsid are also formed and virus buds are finally assemble होता है and inactive viral particle, ठीक है, assemble होने के बाद में क्या बनता है, inactive virus particle। now ये एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम लगता है, that is known as the protease, okay। now soon after the process of budding virus gets matured, ये immature होता है viral particle, वो बाद में mature होता है by using viral protease enzyme। Viral protease enzyme has a important role in the maturation of viral proteins. Proteases break down the large polypeptide synthesized into smaller functional polypeptide. Matured daughter virus particle releases from the cell and it can affect the another cell. That's how HIV virus will multiply in the कैसे infection होता है उसके बारे में। Because this process, if you cannot understand, if you understand this process well, you can understand the drug affecting the HIV, ठीक है। ये समझ में आया क्या आपको, बोलो जल्दी, आपको लेना है पर से तुमचा इंटरनेट चा प्रॉब्लेम आहे तो इश्यू सॉल्व करा ना तुम्ही, इंटरनेट आवाज येत नाही वगैरे तो त्यासीन हाउ HIV विल इन्फेक्ट योर सेल, कैसे HIV इन्फेक्ट करता है, कैसे HIV मल्टीप्लाई करता है, ठीक है।
तो सिंपल होता है. आई विल एक्सप्लेन दिस इन डायग्राम आल्सो. डायग्राम में आपको सिंपल समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है, ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस CD4 सेल्स डेवलप फंक्शनल इम्पेयरमेंट. जो आपका मतलब जो भी आपका इम्यूनिटी सेल है उसको ही अफेक्ट करता है ना ये वायरस, उसके ऊपर जाके ही अटैच होता है, उसमें ये रेप्लिकेट होता है. सो ड्यूरिंग viral replication process, so what happens, CD4 cells during viral replication process, CD4 cells develops functional impairment. CD4 सेल का जो फंक्शन है प्रोडक्शन का इम्यूनिटी का वो डिफिशिएंट हो जाता है. सो इम्पेयरमेंट एंड पेशेंट डेवलप्स डिफेक्ट इन द सेलुलर आर्म ऑफ इम्यूनिटी. तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, डिफेक्ट होता है and patient makes, okay, so deficiency in the cell mediated immunity makes patient susceptible for the opportunistic infections. तो यहाँ पे दूसरे इन्फेक्शंस जो है वो आएंगे. होता है ना, अगर किसी का बर्बादी चलो हो गया तो एक साइड से नहीं बहुत सारे साइड से होते हैं. तो ये क्या HIV वायरस क्या करता है, सिर्फ स्पार्क देता है. पेशेंट विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ द HIV इन्फेक्शन, पेशेंट विल डाई बिकॉज ऑफ द अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. तो HIV क्या करता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पूरा नष्ट कर देता है. सो इट विल टोटली डिस्ट्रॉय योर इम्यूनिटी सिस्टम. And as you don't have immunity, other infections they are very susceptible. Okay, other infection you will catch other infection easily. So what are the other opportunistic infections? So patient does not die because of the HIV virus, patient die because of the secondary infection. कौन सा infection होता है, सबसे पहले होता है आपको ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडियासिस, हार्पेस इन्फेक्शन, निमोसाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड अदर सीनस टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ठीक है, तो HIV हो गया आपको, मतलब इसका मतलब है ना कि HIV वायरस की वजह से आप मर रहे हो. HIV वायरस आपका इम्यूनिटी खराब कर रहा है, आपका इम्यूनिटी खत्म हो गया है और उसके कारण आपको दूसरा इन्फेक्शन हो, क्या, ट्यूबरक्लोसिस. द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द HIV पेशेंट, दैट इज अ ट्यूबरक्लोसिस. देन कैंडिडियासिस, herpes infection, pneumocystis and cryptococcal meningitis, सीनियस टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये इन्फेक्शन होगा. नॉट इमीडिएटली नहीं होता है ये, इन द लेटर स्टेज ऑफ HIV पेशेंट. जो HIV पेशेंट जो होता है लेटर स्टेज, जो थर्ड स्टेज होता है, फाइनल स्टेज, थर्ड या फाइनल स्टेज, उसमें ये इन्फेक्शन आ जाता है. पहले तो इमीडिएटली इन्फेक्शन नहीं आएगा आपको. ठीक है, इनिशियली एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट द HIV वायरस इन द 2 to 8 वीक्स. जैसे आपके बॉडी में HIV वायरस आ गया तो उसमें उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी उसके लिए उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, दैट इज इंटरफेरॉन. सो इनिशियली एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट द HIV वायरस इन 2 to 8 वीक्स. वायरस इज किल्ड बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट. तो जैसे इन्फेक्शन होगा टी लिम्फोसाइट के ऊपर, वायरस उसको टी लिम्फोसाइट उसको किल कर देगा. टी लिम्फोसाइट और इन्फेक्टेड सेल अंडरगो अपोप्टोसिस, मतलब जो इन्फेक्टेड सेल हो गया लिम्फोसाइट उसको किल कर देगा या फिर वो सेल जो है फेगोसाइटोसाइज हो जाएगा, वो सेल मर जाएगा. HIV वायरस रिमेन्स डॉर्मेंट. आप बोलेंगे सर मर जाता है तो कोई टेंशन नहीं ना, आपने को HIV होगा ही नहीं. ठीक है, लेकिन ये अगर सेल अपोप्टोसिस भी हो गया, सेल डेथ भी हो गया, सेल का पूरा जो इन्फेक्टेड सेल है वो पूरा डेथ भी हो गया उसका, तो ये इन्फेक्टेड सेल फेगोसाइटोसाइज्ड और डेथ ऑफ सेल विल बी देयर. स्टिल दैट HIV वायरस रिमेन्स डॉर्मेंट. डॉर्मेंट मतलब क्या, ये मरने की एक्टिंग करता है, ये मरता नहीं. ये साला बहुत खतरनाक होता है. तो ये क्या करता है, तो वायरस रिमेन्स डॉर्मेंट. सो ये मरने की एक्टिंग करता है लेकिन मरता नहीं. तो आपके सेल को लगता है मर गया है, चलो आपकी ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय करो, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं. ठीक है, HIV वायरस में रिमेन डॉर्मेंट फॉर ईयर्स. ये डॉर्मेंट होता है ईयर्स में. इनिशियली जब इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटीबॉडीज बनता है, वो सेल को डिस्ट्रॉय भी करता है जो इन्फेक्टेड सेल है, लेकिन वो वायरस जो है डॉर्मेंट है, वो मरने की एक्टिंग करता है और फिर से वापस आता है. कब, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इज नथिंग बट 1 to 7 ईयर्स. ईयर कितना है, 4.5 ईयर्स. कुछ सालों में ये वापस आता है, डॉर्मेंट पोजीशन में जाता है और फिर वापस आता है. तो इनिशियली क्या है कि आपने इम्यूनिटी उसको मारने का ट्राई करती है, मार दे दी. ठीक है, और इम्यूनिटी को लगता है ये मर गया, लेकिन वो वायरस मरता नहीं है, वो डॉर्मेंट पोजीशन में जाता है एंड बाद में वापस रिलैप्स होता है उसका, बाद में उसको इनक्यूबेट होता है वो
एक साल से लेके 7 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। कुछ पेशेंट में 1-2 साल में वापस आता है, कुछ पेशेंट में 1 साल में आता है, कुछ पेशेंट में 7 साल में आता है। तो एवरेज लेके चलो 4.5। तो ये इन्फेक्शन होने के बाद इमीडिएटली उसको रिमूव किया जाता है, लेकिन वो डॉर्मेंट पोजिशन में जाता है एंड बाद में वापस आता है 4.5 ईयर्स में। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड इज नथिंग बट 1 to 7 ईयर। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV। तो ये आता है, ठीक है। हर एक पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैं हर बार नहीं बोलूंगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया यहाँ पे नहीं, कभी कभी मेरे दिमाग में से निकल जाता है क्योंकि ये मैं बोलते रहता हूँ। सो इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV वायरस इज 1 to 7 ईयर, एवरेज इज 4.5 एंड इट में रिमेन असिम्टोमेटिक कैरियर। पेशेंट में रिमेन असिम्टोमेटिक कैरियर मतलब क्या, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में उसके ऊपर रिएक्ट किया, डॉर्मेंट पोजिशन में चला गया वायरस, ओके। तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे एड्स के, तो यू विल बिकम एसिम्टोमेटिक कैरियर, ओके। इस एसिम्टोमेटिक कैरियर बनेंगे आप एंड फ्यू सिम्टम्स में भी डेवलप। कुछ कुछ पेशेंट में शॉर्ट फेब्राइल इलनेस होता है, कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल रिमेन असिम्टोमेटिक कैरियर एंड कैन इन्फेक्ट अदर्स। तो इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिसीज नहीं हुआ है, लेकिन आपके बॉडी में क्या है, वायरस ऑलरेडी है डॉर्मेंट पोजिशन में। नाउ दिस डॉर्मेंट कैन इन्फेक्ट अदर पीपल। थर्ड, इन द लेटर स्टेज, ओके, ये बाद में जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा, जैसे 4.5 ईयर्स के बाद में वायरल रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन द लिम्फ नोड्स। लिम्फ ग्लैंड से, लिम्फ नोड से वहां पे ये वायरस रेप्लिकेट होना चालू कर देता है, और इतना रेप्लिकेट होता है फास्ट कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। सो इन द लेटर स्टेज the rate of viral replication in the lymph node occurs, okay, high rate of viral replication in the lymph node occurs, okay. So that's why lymphoadenopathy with or without oral candidiasis, आपका जो ओरल कैविटी है उसमें कैंडिडियल इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर हर्पेस जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जिसके मुंह के जिसका भी माउथ कैविटी है उसके हर्पेस इन्फेक्शन, अगर आपको हर्पेस जोस्टर का इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो यू कैन चेक योर HIV वायरस ऑल्सो। तो आपको HIV वायरस के लिए भी जाना चाहिए डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि इन द लेटर स्टेज ऑफ रेट ऑफ, इन द लेटर स्टेज एक 4-5 साल में, तो ये क्या होगा कि वहाँ पे हाई रेट ऑफ replication of virus will be there in the lymph nodes, and then with or without oral candidiasis or herpes zoster, and in the final stage, okay, in the final stage जो थर्ड स्टेज होता है वही फाइनल है। उसके बाद में क्या होता है कि उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आता है, उसमें द पेशेंट विल गेट tuberculosis infection, patient will get candidiasis, meningitis, CNS toxoplasmosis, repeated GIT tract infection like okay, Kaposki sarcoma, Burkitt lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma। ये बाद में ये इन्फेक्शन हो जाएंगे उसको and the patient will die. Finally, patient will die. Now, no drug available currently to eradicate HIV infection. तो पूरा इन्फेक्शन किल करने के लिए अभी ड्रग अवेलेबल नहीं। यूजिंग ड्रग कॉम्बिनेशन यू कैन प्रिवेंट द वायरल रेप्लिकेशन लोड। जो वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कम कर सकते हो आप, ओके। तो वायरल रेप्लिकेशन लोड कैन बी डिक्रीज्ड, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। पेशेंट का इम्यूनिटी थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं एंड द onset ऑफ डिसीज कैन बी डिलेड। तो डिसीज का प्रोग्रेशन जो है वो डिले कर सकते हो एंड सर्वाइवल विल बी प्रोलॉन्ग्ड। मतलब अगर आपने विदाउट ट्रीटमेंट अगर HIV का पेशेंट है, ये सब हो गए थर्ड स्टेज में, तो वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है। वो 100% वो उसका डेथ होता है क्विकली। अगर उसमें अगर आपने ड्रग यूज किए जैसे जड़ीबूटी वगैरह वगैरह, या नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो अगर वो पेशेंट 6 महीने में मरने वाला है तो अगर ड्रग यूज करेंगे तो 4-5 साल जिंदा रह सकता है। इट मे डिले द डिसीज प्रोग्रेशन, इट मे increase the survival rate, okay। Now you can see in a very short again there is a replication of virus in the cell, okay। तो ये क्या है, HIV वायरस है आपका, ये क्या है, HIV वायरस है पूरा HIV वायरस का। ये जो सेल जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका जो CD4 सेल है, मतलब जो आपकी इम्यूनिटी सेल है, CD4 सेल, ओके। सो वायरल, ओके, रिमेम्बर ये कैसे होता है आपको फिर से मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ, आपको जो ऑलरेडी प्रोसेस बोला है वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस HIV वायरस इज RNA वायरस, ये RNA हो गया उसका। HIV वायरस के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, GP41 प्रोटीन, ठीक है। GP120 पे होता है, GP41 पे होता है। नाउ यूजिंग दिस प्रोटीन्स इट विल अटैच टू ए वायरस सेल,
वायरस विल अटैच टू ए होस्ट सेल। ये आपका सेल है, आपका सेल को क्या बोलेंगे, होस्ट सेल। सेल के ऊपर भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, जीपी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। दोनों प्रोटीन एक साथ के एक में के साथ में अटैच होते हैं, देयर आर द रिसेप्टर्स, ओके, दे आर नोन एज साइटोकाइन रिसेप्टर्स, CCR5, CXCR5, CXCR4 एंड CCR5, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स दे विल मेक, विल एक्ट एज अ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर रिसीव करेंगे ये वायरस को, अटैच होगा वायरस, उसके बाद में वायरस पेनिट्रेशन होगा इनसाइड द सेल जाए। जैसे ये इनसाइड द सेल जाता है वायरस, तो उसका अनकोटिंग होता है, ये जो कोट है ऊपर वाला ये रिमूव हो जाएगा, और ये आरएनए जो है वो आरएनए यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। आरएनए जैसे रिलीज होता है कि पूरे वायरस के जो एंजाइम्स वगैरह वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल बी एक्टिवेटेड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल कन्वर्ट वायरल आरएनए, जो वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट विल बी कन्वर्टेड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वायरस का आरएनए वायरस का डीएनए बनाएगा, कौन बनाएगा उसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल मेक डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए, तो वायरल डीएनए बन जाएंगे। नाउ दिस वायरल डीएनए विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए। अभी यहाँ पे क्या है, आपका सेल है तो आपका ह्यूमन डीएनए भी होगा यहाँ पे, ह्यूमन डीएनए, ओके। सो नाउ वायरल डीएनए ह्यूमन डीएनए ये मिक्स होता है, okay. Viral DNA is integrated with the human DNA by using viral integrase enzyme। तो ये इंटीग्रेस एंजाइम क्या करेगा, ये दोनों को मिक्स करेगा, ये होगा इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन दिस, ओके, सो नाउ देयर विल बी रेप्लिकेशन, यहाँ पे ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ का है, ये होस्ट सेल का है। सो बाय यूजिंग होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिस डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड, ओके। नाउ रेप्लिकेशन मींस कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए, so again RNA will be there, ठीक है, ये RNA यहाँ पे रहेगा, ठीक है। now RNA will be converted into proteins by transcription। तो सबके लिए जो एंजाइम रहेगा वो सब होस्ट के एंजाइम है। now proteins will be synthesized। now initially inactive proteins will be synthesized that will be activated by this enzyme, viral enzyme known as a protease। so activated protein, okay, activated protein will be converted into, will make different parts of bacteria। कुछ पार्ट्स कुछ प्रोटीन से क्या बनेगा, ये ऊपर वाला कोट नोन एज कैप्सिड, कुछ पार्ट से ये टेल बनेगा, ठीक है। और ये जो आरएनए है वो एक्टिवेटेड, देन असेंबलिंग, दिस प्रोसेस नोन एज असेंबलिंग। आरएनए यहाँ पे आरएनए इंसर्ट हो जाएगा, ये प्रोटीन अलग बना है, ये प्रोटीन अलग बना है, सो दिस प्रोसेस ऑफ making is known as assembling, okay। and after the assembling there will be a release of this matured virus। after the assembling there is a maturation of virus, and this viral particle, mature virus particle, will be released। now this virus is ready to infect another cell, that's how there is a multiplication of HIV virus in the cell। now ये multiplication तो हो गया, अभी how you can prevent this, okay, how you can remember the classes of your anti HIV drugs। now first class, okay, पहला क्या है कि अटैचमेंट होने मत। ये ड्रग जो है एनफुवायराटाइड that will limit the glycoprotein of your HIV वायरस। HIV वायरस के सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको जाके बाइंड करता है और इट विल प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ दिस वायरस टू द सेल, ठीक है। एनफ्यूवायराटाइड, एनफ्यूवायराटाइड क्या करेगा, it will bind to a glycoprotein present on the HIV virus and it will prevent the attachment of that virus to cell। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टारगेट देखो, सेल के ऊपर जो साइटोकाइन प्रोटीन है, ठीक है, CCR5 एंड CXCR4, सो दैट उसके ऊपर ये ड्रग बाइंड करेगा, कौन सा, मीरावायरक। सो मीरावायरक विल बाइंड टू cellular kinase enzyme, cellular kinase receptor, and will prevent the again entry of this virus into the cell, will prevent the entry of virus। तो ये एंट्री प्रिवेंट करेगा, ये अटैचमेंट प्रिवेंट करेगा, सो दिस ड्रग विल प्रिवेंट द अटैचमेंट, ठीक है। कौन क्या करता है याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं जी जान लगा कि आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ड्रग जो है पहला वाला, ये एनफुवायराटाइड, इट विल प्रिवेंट द अटैचमेंट, दिस मीरावायरक विल प्रिवेंट द penetration of virus inside the cell। now अगर ये हो गया, सो दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर हो गया तो आरएनए रिलीज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेटेड, वो डीएनए बनाएगा। now this reverse transcriptase RT, reverse transcriptase,
is again a target for drugs. So nucleotide reverse transcriptase inhibitor, nucleotide reverse transcriptase inhibitor, NRTI and NRTI मतलब नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड रहेगा, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में. नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में उनमें ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. बोथ आर द इनहिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, ये दिस ड्रग विल इनहिबिट दिस जिडोवुडीन एंड ऑल दैट, जिडोवुडीन, लैमोवुडीन, ओके, स्टोवुडीन. देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट है इंटीग्रेज. ठीक है, ये जो डीएनए बना है वायरस का डीएनए, ठीक है, वो आपका ह्यूमन डीएनए के साथ में कॉम्बिनेशन में वो इंटीग्रेट हो जाएगा बाय यूजिंग एंजाइम नोन एज इंटीग्रेज. वायरल एंजाइम होता है. नाउ दिस इज अनदर टारगेट. सो दिस ड्रग रेटिक्राविर, राल्टेग्राविर, राल्टेग्राविर एंड एवी, राल्टेग्राविर एंड एलवी टेग्राविर, okay, राल्टेग्राविर एंड एलवी टेग्राविर, these drugs are known as a integrase inhibitor. ओके, इंटीग्रेज. तो ये इसको इनहिबिट करेंगे, फर्दर प्रोसेस प्रिवेंट करेंगे. जैसे ये अटैचमेंट प्रिवेंट करेगा, अटैचमेंट होगा ही नहीं तो अंदर जाएगा नहीं, तो बाद का स्टेप्स इनहिबिट करेगा. अब ऑब्वियसली बाद का स्टेप होगा ही नहीं, so it will prevent the attachment. मेरा वायरस will prevent the penetration. ये ट्रांसक्रिप्टेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर will prevent the conversion of viral mRNA to DRNA, viral mRNA to viral DNA. Integrase inhibitor will prevent the integration of viral DNA to human DNA. ये इंटीग्रेशन प्रिवेंट करेंगे. बाद में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन होके प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा और बाद में वो प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम लगता है प्रोटीएज. नाउ दिस इज आल्सो वन टारगेट. नाउ दिस प्रोटीएज इनहिबिटर्स ऑल द वीरस जो होता है सेक्विनावीर, लोपिनावीर, इंडेनावीर, ओके, ऑल द वीरस आर नथिंग बट द प्रोटीएज इनहिबिटर्स. ओके, क्लियर, समझ में आया?